یا شہر کا ایک نیتا ہے جس کا نام ہے ندیم، وہ بولتا ہے حبیب اللہ فیضی کے پاس اب جلسے نہیں رہے، پروگرام نہیں رہا، تو اب وہ جو چاہ رہا ہے بک رہا ہے۔ میں کہتا ہے بے وقوف، تمہارے گھر کا چولہا بند ہو سکتا ہے مگر حبیب اللہ فیضی کے گھر کا چولہا بند۔ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر انسان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ حضور کی محفل میں بیٹھ کر حضور کو یاد کر رہے ہیں، یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت نے محبت فرمایا ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی مجھے مغرب کے بعد یاد کرتا ہے تو مغرب سے پہلے میں اسے یاد کر لیتا ہوں، یہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اگر کوئی حضور غوث اعظم کو یاد کرتا ہے تو اس سے پہلے حضور غوث اعظم انہیں یاد کر لیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جگاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ مدینے میں کروٹ لیتے ہوئے آپ کو یاد کیے ہوں گے۔ اس بنیاد پر آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کی محفل سجائی ہے اور بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی محفلوں میں بیٹھ کر کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہنسی مذاق کی محفل نہیں ہے، یہ تفریح طبع کی محفل نہیں ہے، یہاں بدلہ سنجی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول کی محفل ہے تو یہاں باتیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے نہیں، یہاں باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی آنکھ سے جرجر آنسو گرے۔ نہیں بھی اگر رونا آتا ہو، مصطفیٰ فرماتے رونے کی طرح چہرہ بنا لینا۔ اللہ رب العزت جس انسان کی آنکھ سے آنسو کے قطرے جاری ہوتے ہیں خدا اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے، اور جو رونے کی طرح چہرہ بنا لیتا ہے خدا اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا کم کرو رونا زیادہ کرو۔ جو یہاں زیادہ ہنسے گا قیامت میں روئے گا، اور جو یہاں زیادہ روئے گا وہ قیامت میں مسکرائے گا۔ ایسا مسکرائے گا ایسا مسکرائے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھے گا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، مصطفیٰ ان کی شکایت کریں گے، مصطفیٰ ان کی شفاعت کریں گے۔ آپ صرف ایک پہلو کو جانتے ہیں نا کہ مصطفیٰ قیامت کے دن شفاعت کریں گے ہم اپنی امت کی۔ ابھی جا رہے ہیں اسلام صاحب عمرہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا احسان کہ مصطفیٰ جان رحمت کا بلاوا ہے۔ جو اجمیر شریف جاتے ہیں، اجمیر شریف جانے والی بسوں پر بینر دیکھنا لگا ہوا ہوتا ہے، اس بینر پہ لکھا ہوتا ہے ارادے لاکھ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اگر خواجہ کے بلائے بغیر کوئی اجمیر نہیں جا سکتا ہے تو مدینے والے سرکار کے بلائے بنا مدینہ کون جا سکتا ہے؟ کس کی ہمت ہے کہ مدینہ جائے گا؟ یعنی مدینہ جانے کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، ارادے کی مضبوطی سب سے بڑا کام کرتی ہے۔ ہم نے بہت سارے آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ ارادے مضبوط ہونے چاہیے، اپنے دل کی پختگی، ارادوں کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ مدینے والے سرکار آپ کو یاد کر لیں، نبی کونین آپ کو یاد کر لیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آپ کی حیثیت الگ ہو گئی، آپ کا اسٹیٹس الگ ہو گیا، آپ کا وقار الگ ہو گیا۔ تم اسٹیٹس کو سمجھتے ہو کہ واٹس ایپ میں ایک آپشن آتا ہے اسٹیٹس، اس اسٹیٹس میں نچنیوں کی تصویر لگا دی، ناچنے والی لڑکیوں کا ڈانس لگا دیا، سوچا کہ ہمارا اسٹیٹس۔ اے بے وقوف، دنیا والے تمہاری پہچان بتانا چاہتے ہیں، یعنی تم اپنے موبائل میں واٹس ایپ میں اگر ناچنے والی لونڈی کو لگائے گا، ناچنے والی نچنیاں کی تصویر لگائے گا، اس کا ڈانس لگائے گا، اس کی رنگین تصویر لگائے گا، تو دنیا والے تمہارا اسٹیٹس پہچان رہے ہیں، دنیا والے تمہاری حیثیت جان رہے ہیں۔ تمہاری حیثیت یہ نہیں ہے کہ کسی بالی ووڈ کے اداکارہ کی تصویر لگائے، تمہارا اسٹیٹس یہ نہیں ہے کہ بالی ووڈ کے ناچنے والی کسی لڑکی کی تصویر لگائے، بلکہ تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ جب تمہارا اسٹیٹس دیکھنا چاہے تو کسی ناچنے والی کی تصویر نہیں، گنبد خضرا کی نعت پڑھنے والے کسی شاعر کی نعت ہو، کسی مقرر کی تقریر ہو، تاکہ دنیا والے جان لیں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے۔ جب یہاں ان کا اسٹیٹس اتنا اچھا ہے تو قیامت میں ان کا اسٹیٹس کتنا اچھا ہوگا۔ تمہیں
انہیں اپنے اسٹیٹس کی خبر ہونی چاہیے. یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں, اس سے اچھا کوئی سفر نہیں ہے جو سفر مدینہ کی طرف, مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم, سن رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں کتنے لوگ سن رہے, ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی طرف جا رہے ہیں, ان سے اچھا, اس شہر سے اچھا کوئی شہر نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے پروردگارا, میں نے اس شہر میں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی ہے, اب اس شہر کو شہر امن بنا دے, اس شہر کو شہر امین بنا دے, اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرماتے ہیں. نبی کونین کی آمد کے لیے دعا فرمائی حضرت ابراہیم نے, اے پروردگارا, میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی, مگر اب اس کو آباد کون کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے تعلق سے حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی, ان کی دعا قبول ہوئی. مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوئے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری مکے میں ہوئی, مگر مصطفیٰ ہجرت کے موقع سے جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو بار بار مصطفیٰ مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں, اے کعبہ, دنیا کے تمام گھروں میں سب سے بہترین گھر, سب سے خوبصورت اور سب سے محبوب گھر اگر میرے لیے کوئی ہے تو وہ تو ہے. اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر مدینہ نہیں جاتا. یہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں. مگر مدینہ چلے جانے کے بعد نبی کونین نے جب مدینہ شہر کو آباد کر لیا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں, مکہ حضرت ابراہیم نے آباد کیا ہے اور مدینہ میں نے آباد کیا ہے. زور سے بولیے, زور سے بولیے, زور سے بولیے. مکے کو میں نے آباد کیا ہے, اور مکے کو ابراہیم نے آباد کیا ہے, اور مدینہ میں نے آباد کیا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر. یا رسول اللہ. فیروز رہبر بڑی اچھی نقابت کرتے ہیں. عظمت بھاگل پوری صاحب کی ابھی نعتیہ شاعری پیش کرنی ہے, ابھی نعتیہ شاعری سے آپ محظوظ ہوں گے. ندیم رضا فیضی نے ابھی آپ کو بہت اچھی نعتیں سنائی, بہت اچھے حسین لب و لہجے سے آپ کو محظوظ کیا. اللہ رب العزت ان تماموں کو سلامت رکھے. فیروز رہبر صاحب یہ بول رہے تھے کہ حضرت لوگ تقریر سننے کے لیے مشتاق ہیں, جلدی چلیے, کھانا بھی کھانے ٹھیک سے نہیں دیا. یہاں آنے کے بعد میں واقعی محسوس کر رہا ہوں, جہاں کے لوگوں کی تہذیب اچھی ہوتی ہے وہاں کے لوگ خطاب سننا پسند کرتے ہیں. جہاں کے لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ خطیب کا خطاب سنتے ہیں, چونکہ اسے پتا ہے مصطفیٰ کی مدح سرائی کے طور پر شعرا کی شاعری سننا میرے لیے مجھے جتنا مزہ دیتا ہے, یہ شاعری جتنا مزہ دیتی ہے اتنا ہی مزہ مجھ کو کسی خطیب کا خطاب دیتا ہے. خطاب دیتا ہے. تقریریں بھی ہونی چاہیے, تقریریں بھی سننی چاہیے. میں ان آوارہ اور پگڈنڈیوں میں زندگی کے سیر کرنے والے, میں ان لچوں کی بات کیا کروں جو 12 بجے تک مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھیں گے. فلاں صاحب آ رہے ہیں, وہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں, فلاں صاحب آ رہے ہیں, بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. 12-1 بجے رات تک نعت خوانی ہوئی, اور جب تقریر کرنے کے لیے کوئی مقرر بیٹھا تو ایک ساتھ 25 آدمی اٹھ کر کے بھاگ گیا, 50 آدمی اٹھ کر کے بھاگ گیا. میں کہتا ہے بے وقوف, نعت تم سنو گے, تقریر تمہارا باپ سنے گا کیا؟ نعت بھی تمہارے لیے ضروری چیز ہے, تقریر بھی تمہارے لیے ضروری چیز ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے اگر نعت خوانی کے ذریعے تمہارے اندر دیوانگی لائی جاتی ہے تو تقریر کے ذریعے تمہیں ہوش میں لایا جاتا ہے. اور یہ سمجھ لو کہ نعت مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں پڑھے جانے والے اشعار اگر نبی کی نعت ہے تو تقریر میں جو باتیں کی جاتی ہے وہ بھی نبی کی نعت ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ بھی نبی کی نعت ہے. دلچسپی کے ساتھ سننا چاہیے. حق بولنے کی عادت انسان کو ڈالنی چاہیے. میں کہتا ہوں حق بولنے سے اگر آدمی کو برا بھی لگتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کس کو برا لگے, کس کو اچھا لگے, کس کو اچھا لگے. میں تو اتنا چاہتا ہوں جس مدینے والے سرکار کی بات ہو رہی ہے وہ مدینے والے سرکار خوش ہو جائیں. 4 لوگ اگر خوش نہیں ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر حق بولنا چاہیے. ہمارے علماء نے حق بولنے کی ہمیشہ جرأت کی, اور کبھی ایسی جرأت ہونے کے بعد
बाद अगर बाद में लोग खींचातानी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हक बोलना चाहिए। अभी आज से 4-5 दिन पहले अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला ने डुमरी विधानसभा के हवाले से चंद बातें जरा सा पोस्ट में कह क्या दी, लोगों में वावेला मच गया, लोगों में एक हंगामा मच गया। वो लुच्चा जो पूर्णिया शहर का एक नेता है जिसका नाम है नदीम, वो बोलता है हबीबुल्लाह फैजी के पास अब जलसे नहीं रहे, प्रोग्राम नहीं रहा, तो अब वो जो चाह रहा है बक रहा है। मैं कहता है बेवकूफ, तुम्हारे घर का चूल्हा बंद हो सकता है मगर हबीबुल्लाह फैजी के घर का चूल्हा बंद नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारे घर में जो चूल्हा जलता है वो दूसरे नेताओं के तलवा चाटने की वजह से चूल्हा जलता है, मगर हबीबुल्लाह फैजी के घर में चूल्हा तलवा चाटने की वजह से नहीं, मुस्तफा की नाक की बरकतों से चूल्हा जल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी, शाने मधुपुर, हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी। वाह 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 बोलता है वाह। जल से बंद हो गए, इसलिए अब ऐसे में जैसे तैसे बयान दे रहा। मैं कहता हूँ we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic, ये भारत का संविधान हमें freedom of thought, freedom of expression, freedom of worship, freedom of belief, ये सारी आजादी मुझे भारत का संविधान देता है। कहाँ इबादत करनी है कहाँ नहीं करनी है, इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। किस पर ईमान रखना है किस पर नहीं रखना है, इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। किस पर अपनी राय देनी है किस पर नहीं देनी है, इसकी आजादी भी हमें भारत का संविधान देता है। हम क्या बोलेंगे हम क्या सोचेंगे, इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। लोग बोलते हैं मौलवी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मौलवी को मस्जिद में रहना चाहिए या मदरसे में रहना चाहिए, इनको सियासत से क्या ताल्लुक है। मैं कहता है बेवकूफ, खड़ा होकर पेशाब करने वाला आदमी राजनीति क्या करेगा। मैं कहता हूँ हमारे उलमा को राजनीति करनी चाहिए। जब से उलमा ने राजनीति का मैदान छोड़ा है तब से यह राजनीति किसी का रखैल बन करके रह गई, यह नाजायज औलाद बन करके रह गई। हमारे उलमा अगर आज भी सियासत में आ जाए, मैं कहता हूँ वो हैदराबाद का उवैसी 350 के बीच में वो आलिम नहीं है मौलवी नहीं है, आलिमों की सोहबत में बैठता है तो 350 MP पर भारी होता है। जब आलिमों की सोहबत में बैठने वालों की जबान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है तो एक आलिम की जबान का मुकाबला कौन करेगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वाह, मौलवी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मौलवी को मस्जिद में रहना चाहिए या मदरसे में रहना चाहिए। इन मुल्लाओं की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ 12 लाख मुरब्बा मील पर जो हजरत उमर फारूक ने हुकूमत की थी तो बगैर राजनीति के हुकूमत की थी क्या, बगैर सियासत के हुकूमत की थी क्या। वो मोहनदास करमचंद गांधी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अपनी पहली स्पीच में वो बंदा बोलता है कि अगर हिंदुस्तान को सही तरीके से चलाना है तो किसी को अपना आइडियल मत मानना, किसी के नक्शे कदम पर मत चलना। मैंने मदीने में दो सुल्तान को देखा है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होकर के जिंदगी गुजारता है। अगर हुकूमत चलानी है तो किसी को मत मानना, सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखना, उमर फारूक की जिंदगी देखना। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं, हमें बोलने की आजादी है, हमें बोलने का हक कोई मत छीनना। और अगर ये कहते हो कि हमें राजनीति में नहीं आनी चाहिए तो मैं कहता हूँ तुम्हें राजनीति का ढंग भी हम ही लोग सिखाएंगे, तुम्हें सियासत का तरीका भी हम ही लोग सिखाएंगे, क्योंकि हमारे सामने मुस्तफा का कैरेक्टर है। तुमने नहीं देखा क्या नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक से अपने आप को खड़ा करने वाला, मुस्तफा जान रहमत के अखलाक की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने वाला वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। जब किसी की माँ की गोद में हरियाली होती है तो बेटा ऐसे ही पैदा होता है, जिस माँ के दूध में हरियाली होती है तो बेटा ऐसे ही पैदा होता है। मगर जिस माँ के दूध में जहरीलापन हो, जिस माँ का दूध ही जहर
भरा हो। महफिल रसूल में बैठकर बातें करेंगी, महफिल रसूल में बैठकर झुमका की बातें करेंगी, ठुमके की बातें करेंगी, घर की गीबत करेंगी, सास बहू के झगड़े होंगे और वही सारी बातें इस जलसे में होंगी। मैं कहता हूँ ऐसी औरतों के पिस्तान से दूध पीने वाले लड़का या तो वो एटीएम मारेगा, या तो वो सिनेमा हॉल को आबाद करेगा, या तो फिर टिकटॉक में वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। ये जो एटीएम मारने वाले लौंडे हैं, मैं इससे कहना चाहता हूँ, ऐ बेवकूफ, रोजाना जो गाड़ी बदल रहा है, आज ये गाड़ी, आज वो गाड़ी, ये तेरे बाप की कमाई है क्या? मेहनत से कमा कर गाड़ी ले, उसके बाद समझ में आएगा क्या होती है, हैसियत क्या होती है। दूसरों के पैसे को हड़प कर हराम की दौलत से चाहे 50 गाड़ी बदल ले, मगर इज्जत दुनिया वाले तो दे सकते हैं, मुस्तफा की नजर में तेरी कोई हैसियत नहीं है। मुस्तफा की नजर में इज्जतदार वो आदमी है जो सूखी रोटियां खाकर जिंदगी गुजार लेता हो, मगर मुस्तफा की सुन्नत की खिलाफ वर्जी न करता हो। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। क्या कहने हजरत, सुन रहे हैं आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बोलो थोड़ी देर और 5-10 मिनट बोलो। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है, ये मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, इनकी हैसियत अलग है, इनका स्टेटस अलग है, इनका वक़ार अलग है, इसलिए कि हुजूर ने बुलाया है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बुलावा आ जाने के बाद इरादे जिसके जितने मजबूत हो जाते हैं। मैं पिछले साल उम्रा करके आया, गुज़श्ता साल, मुझे यकीन भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उम्रा करने के लिए इतनी जल्दी चला जाऊंगा। अचानक किसी जलसे में गया, जलसे में तकरीर हुई, एक साहब से मुलाकात हुई, कहा कि हजरत हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा मुबारक हो। कहा हजरत आप भी चलिए। मैंने कहा मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, रोजाना प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम के नजराने को लिफाफे को मत देखिए, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां कहती है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। कहा हजरत आप चलिए, आप सिर्फ इरादा बनाइए, आपका काम हो जाएगा। यानी नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी को बुलाना चाहे अपनी बारगाह में तो उनके लिए बैंक और बैलेंस की जरूरत नहीं है, इरादा मजबूत कर लो, मुस्तफा जान रहमत वीजा भेज देंगे। हक है, हक है। ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम-नवाज़ी की बुनियाद पर लोग मदीना जाते हैं, ये मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। रोजाना 120 रहमत तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल हकील रमा फरमाते हैं, रोजाना 120 रहमत खुदा नाजिल फरमाता है। उन 120 में से 80 रहमतें सिर्फ मक्का और मदीना के लिए है। आप सोचें वो शहर कौन सा शहर है? मक्का और मदीना में कुल 15 मकामात ऐसे हैं जिन मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं। अपने आप जब जाते हैं, जब उम्रा करने वाले लोग जाते हैं, देखो भीड़, इतनी तादाद में लोग आते हैं, आकर के मुलाकात करते हैं, सलामी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर हुजूर फरमाते हैं, ये जब जिस हुजूर फरमाते हैं जब ये उम्रा करके लौटे, जब ये वहां से आए, वहां से आने के बाद मुलाकात करना, मुलाकात करने के बाद इनसे दुआएं करवाना। जब जाते हैं सारे लोग आते हैं मुलाकात करने के लिए, मगर जब वापस आते हैं किस गली से अंदर घुस जाते हैं मौलवी, किस गली से हाजी साहब अंदर घुस जाते हैं या मोहतमिद साहब दाखिल हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। हुजूर फरमाते हैं जब वो लौट करके आए उनसे दुआएं करवाना, उनसे मुलाकात करना, उनकी आंखें देखना, उनकी आंखों को देखकर मत समझना उनकी आंखें जैसी पहले थी वैसी अब भी है। पहले आंख थी तो सिर्फ कोरी आंख थी, मगर अब लौट करके आई है तो वो आंखें मुस्तफा जान रहमत के रोजे का जमाल लेकर के लौटी है। जोर से बोलिए ना, और जोर से पूरा मजमा एक बार कहें हाथों को लहरा कर या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान, जब ये लौट करके आए मुलाकात करने के लिए जाइएगा, मुलाकात करके बोलिएगा, मुलाकात करके पूछिएगा कैसा है मुस्तफ़ा का शहर, कैसा आपने देखा, वहाँ कौन कौन सी चीजें आपने देखी। हम गए थे उम्रा करने के लिए, हाजी साहब तो देखे हुए, हाजी हबीबुल्लाह फैदी साहब, अलहाज मौला शहादत साहब किबला, ये लोग तो देखे हैं। गारे सौर जहाँ पे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रातें गुजारी थी, जब हम जैसे लोग चढ़ते हैं
हैं तो 3.5 घंटे लगते हैं उस पर चढ़ने में। जवानी का नशा उतर जाता है 3.5 घंटे। हर बार इरादा करके हम लोग चलते थे कि जब तक आधा घंटा चलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, मगर हर 10 मिनट में पसीना उतर जाता था, हर 10 मिनट में जवानी का गुरूर खत्म हो जाता था, 10 मिनट में बैठना पड़ता था। यानी इस जवान की हालत में अकेले चले तो 10 मिनट चलने में हालत खराब हो जाए। मगर सिद्दीक अकबर का ईमान और उनके ईमानी हरारत का आलम क्या था कि जब आप चल रहे थे तो अकेले नहीं, मुस्तफा को कांधे पर बैठा कर उस पहाड़ पर चल रहे थे। तो उसे बोलते हैं ईमानी बलबला, तो उसे बोलते हैं ईमानी हरारत, तो उसे बोलते हैं। क्यों भाई, हमें चुटकुला चाहिए। हुजूर की महफिल में बैठकर हम हंसी मजाक करेंगे, कहबाजी करेंगे। ए जालिम, हंसना है तो हुजूर की महफिल क्यों, मजाक ही करना है तो हुजूर की महफिल क्यों। यहाँ बैठकर हंसो मत, यहाँ बैठकर कहबाजी मत करो। खबरदार खबरदार, क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा कल कि तुम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम नबी के महफिल में बैठकर हंस रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे हाथ से मस्जिद अक्सा निकल गई और तुम फिर भी रो रहे हो, तुम फिर भी हंस रहे हो। तुम्हारे हाथ से बाबरी मस्जिद निकल गई, फिर भी तुम हंस रहे हो। तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत और आबरू नीलाम हो रही है, फिर भी तुम हंस रहे हो। 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां मुसलमान से हिंदू बन गई इन आरएसएस के फलुओं के चक्कर में। क्यों भाई, स्कूल में बताया जाता है एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार में हर और जंग में हर चीज जायज है। यानी अब हर नकाब पोश, हर बुर्का वाली लड़की मशकूक नजर आने लगी। पता नहीं नकाब पहनी हुई है हो ना, ये किसी रामायण से बात करती होगी, किसी नारायण या किसी कुत्ता से इश्क लगाती होगी, या किसी तिवारी से या किसी गणेश से। ए बेवकूफ, तुमने बेटी के दिमाग में ये सपना बैठाया था मेरी बेटी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है। क्यों साहब, पैसा मिलेगा। मैं कहता है बेवकूफ, अपनी बेटी के दिमाग में ये बात बैठाओ मेरी बेटी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, मगर इससे पहले फातिमा की कनीज बन जाओ। पैसा मिले न मिले, जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। सुन रहे, मजमे से नारा लगाना जानते हैं कोई? कोई नहीं। बोलो 5-10 मिनट बोलो। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 7 लाख कोई हैसियत है, कोई माना रखता है? 7 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां। मतलब इस बात की नहीं, मतलब इस बात से नहीं है कि 7 लाख लड़कियां मुसलमान से हिंदू बन गई, इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं सोच रहा हूँ इस बात पर, जिस 7 लाख की तुम बात कर रहे हो, उन 7 लाख में से किसी एक लड़की, कोई एक लड़की अगर हिंदू बन गई, तुम्हें पता नहीं उसकी कोख से कैसा बेटा पैदा होता, उसकी कोख से कैसा शहजादा जन्म लेता। तुम्हें इसका अंदाजा है क्या? तुमने अपनी बेटी को आजाद छोड़ दिया। मेरी बेटी चाहे जिस हालत में भी बाजार घूमे, क्या फर्क पड़ता है मुझको? मेरी बेटी नकाब नहीं पहनेगी, मेरी बेटी नकाब नहीं पहनेगी, मेरी बीवी नकाब नहीं पहनेगी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, अपने ज़मीर को खोल करके सोचना, अपने ज़मीर को खोल करके अपने कानों से सुनना और अपने एहसासात में जगह देना। इस महफिल रसूल में, इस जलसे में जितनी खवातीन आई हैं, मेरी माएँ और बहनें, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। मेरी नज़र में सब मोहतरम बिशान है और सब मुअज़्ज़म है, सबकी हैसियत ऊंची है। मगर बताओ, मुस्तफ़ा जान रहमत के कलमा पढ़ने वाली हैं ये लोग, इन लोगों के अंदर, इन लोगों के एहसासात इस कदर बेदार होने चाहिए थे ना कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ नकाब पहन कर आना चाहिए था, यहाँ बुर्का पहन कर आना चाहिए था। तुम में से किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की भांजी है, किसी की भतीजी है, तुम में से किसने सोचा कि यहाँ नकाब पहन कर आना चाहिए था, बुर्का पहन कर आना चाहिए था? मर्द और औरत एक साथ बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि मर्दों का ग्रुप अलग है, औरतों का ग्रुप अलग है, मगर यहाँ से बैठने के बाद एहसास होता है कि किस अंदाज में बैठे हैं। मैं कहता हूँ, जिन
और जिन लड़कियों के, जिन शहजादियों की हैसियत इतनी ऊंची है कि उनके लिए पर्दे का एहतमाम है। पूछ हबीबुल्लाह फैदी साहब के बिला से, अल्लामा शहादत हुसैन साहब के बिला मिसबाही से, अल्लामा कमरुद्दीन साहब के बिला मिसबाही से, जितना अच्छा मोबाइल होता है उतना अच्छा बैक कवर चाहिए इनको। क्यों साहब कवर क्यों चाहिए? नहीं मौलाना साहब, स्क्रैच आ जाता है, इसलिए कवर लगाना जरूरी है। यानी मुसलमानों की लड़कियों की इज्जत और उसका एहतराम इतना है कि उसे नकाब में रखना चाहिए। तुमने नहीं देखा अमेरिका में एक लड़की, ईसाई लड़की, रोजाना जाती है ऑफिस काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, उसके बाप का साया सर से उठ गया, पूरी माँ है और वो दो छोटे छोटे उसके भाई है, उन लोगों की किफालत की जिम्मेदारी उसके सर पर है। रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, मगर ऑफिस जाने वाले रास्ते में चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े होते हैं। वो जो लिबास पहन कर जाती है, उस लिबास को देखकर लड़के भद्दे कमेंट करते हैं, उसको बड़ा बुरा भला बोलते हैं। वो लड़की वापस आती है और अपनी एक दोस्त फातिमा नाम की एक मुसलमान लड़की जो उसकी सहेली है, उससे आकर मुलाकात करती है और वो बोलती है मेरी तबीयत नहीं चाहती है कि मैं जॉब करने जाऊं, मगर मेरी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी, मेरे दोनों भाइयों की किफालत की जिम्मेदारी ने मुझे मजबूर कर रखा है, वरना मेरी तबीयत गवारा नहीं करती है। वो मुसलमान नाम की फातिमा लड़की बोलती है कल जाना और ये मेरा बुर्का लो, इसे पहन कर चली जाना। जब बुर्का पहनकर वो दूसरे दिन जॉब करने के लिए जाती है, ऑफिस जाती है, वही गली है, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही नौजवान लड़के हैं। जब ये लड़की चौराहे पर पहुंचती है तो वो नौजवान लड़के बोलते हैं छोड़ दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। सारे के सारे नौजवान लड़के उसके लिए रास्ता दे देते हैं। ये लड़की जाती है ऑफिस, काम खत्म करके घर लौटती है, बुर्का भेजवा देती है। दूसरे दिन दरवाजे पे दस्तक दी, फातिमा नाम की लड़की किचन में है, वो अंदर से आवाज देती है बुर्का चाहिए, नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ ले लो। वो लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हूँ, बल्कि नकाब पहनने का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब